Hello everyone, welcome to the video series for class 11 computer science. In the last two videos we have discussed about string manipulation and list manipulation. In this video we are going to discuss about tuples manipulation in Python. So we can say that most of the behavior and properties of string, list and tuples are common, but there are some functions which are applicable to individual of them. It means the functions are not applicable to all of them. So there are different functions for string, for list and for tuples. And again, the basic difference, the most important difference between these three are, among these three only list is the sequence which is mutable in nature. Rest, string and tuples are not mutable in nature, but most of the properties are still same, like indexing, slicing and replication operator, membership operator and concatenation operators. Those things are common in string, list and tuples. All these operators work same in case of these three sequences. So let us start today's video. So we can see that tuples are sequences that are used to store a tuple of values of any type. Like list, this tuple can store mixed data type as well. But the very important property that Python tuples are immutable, means we cannot change the elements of a tuple in a place. And how we can represent a tuple? So tuple is represented by parenthesis symbol. Like list is represented by square bracket and strings are represented by single quotes, double quotes and triple quotes. Tuples are represented by round bracket which is known as parenthesis. तो टपल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम parenthesis यूज करते हैं. तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे if we are having round bracket, if we are having parenthesis without any element, that means this is an empty tuple. यहाँ पे हम देख सकते हैं this is a tuple of integers. Here we are having tuple of characters or tuple of strings. So tuple can be created by putting the number of expressions in parentheses and use round brackets to indicate the start and end of the tuple and separate the items by commas. जिस तरह से previous video में हमने list बनाई थी, सिमिलरली बिल्कुल उसी तरीके से हम अपने टपल्स को भी क्रिएट कर सकते हैं. डिफरेंस क्या है? यहाँ पे हमें राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस यूज करना होता है और टपल्स को हम दूसरे सीक्वेंस यूज़ करके भी बना सकते हैं. जैसे हमने लास्ट वीडियो में अपने लिस्ट को एक स्ट्रिंग यूज़ करके बनाया था और हमने फंक्शन यूज़ किया था लिस्ट फंक्शन, वैसे ही हम स्ट्रिंग से टपल भी क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे हम अपना फंक्शन यूज़ कर सकते हैं टपल. एंड वी मे हैव नेस्टेड टपल ऑल्सो. अगर एक टपल के अंदर में दूसरा टपल है तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड टपल. तो ये सारी चीज़ें हम समझते हैं. Now see, if we are using this one only, it means our tuple is empty. ठीक है, tuple अभी हमारा empty है. We can create tuple of integers. This is tuple of integers. अगर आप tuple of string create करना चाहते हैं that is also possible. और mix type का tuple भी हम create कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे हमारे पास दो integer हैं और अगर एक यहाँ पे हम डाल देते हैं string तो that is also possible. यहाँ पे देखिए हमारे टपल्स में मिक्स्ड टाइप हो गए. नेस्टेड टपल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? नेस्टेड टपल हम क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे टपल है, इसके अंदर और एक टपल अगर हम डाल देंगे, मतलब एलिमेंट्स अगर हमने इनक्लोज कर दिया राउंड ब्रैकेट में, तो आप देख सकते हो कि ये हमारा बन गया नेस्टेड टपल. तो इस तरह से हम टपल्स को क्रिएट कर सकते हैं. अब बात करते हैं हम हाउ टू चेक वेदर आवर टपल इज म्यूटेबल और इम्यूटेबल. तो सपोज हमारे पास एक टपल हमने क्रिएट किया है, सॉरी 2 3 4 एंड 5 हमारा एक टपल क्रिएट हुआ है एंड लेट अस ट्राई टू चेंज द फर्स्ट वैल्यू. तो जैसा कि हमने कहा था कि
इसमें भी एलिमेंट्स की इंडेक्सिंग होती है। तो अगर हमें किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना होगा तो हम उसके इंडेक्स वैल्यू के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो इंडेक्स वैल्यू की जो काउंटिंग स्टार्ट होती है वो होती है 0 से। तो अगर हमने 2 को एक्सेस करना होगा तो हमें इंडेक्स पोजीशन 0 लिखना होगा। तो अगर रिवर्स ऑर्डर में हम इंडेक्स यूज़ करना चाहेंगे तो फिर हमारी इंडेक्स वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो जैसे हमने स्ट्रिंग और लिस्ट के लिए इंडेक्सिंग यूज़ की थी, सिमिलरली हम यहाँ पे टपल्स के लिए भी इंडेक्सिंग यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमें 2 को एक्सेस करना होगा तो हम लिखेंगे t of 0। तो लेट अस ट्राई टू चेंज द वैल्यू ऑफ 2 फ्रॉम 12। तो हम देखते हैं कि क्या ये हमें अलाउ कर रहा है चेंज करने के लिए या नहीं। तो इसे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। पहले इसे हम सेव कर लेते हैं। Let us try to first save this one. Okay, so here we can see that we are getting error. So hence we can say that tuple is not mutable. इसके वैल्यू को हम उस प्लेस पे चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कमिंग बैक टू द स्लाइड। अब एक चीज़ हमें ये देखना है कि हम स्ट्रिंग से अपने टपल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक हाउ वी वर क्रिएटिंग list from string. So first take any string. We have taken a string hello, and suppose we want to create a tuple t from that string. So for that we have to use tuple of s, and let us print t. Okay, and try to execute this one. We will have the elements of tuple as hello. Let us check. We will have the elements as hello, and elements are enclosed in parentheses. It means we have created a tuple. Now we can see that what are the similarities between lists and tuples. So here we can say that len function is also available, which will give you how many elements are there. Indexing is same. Just now I show you that how we can access elements of tuple, because index starts from 0. Slicing, okay, it is also same. Concatenation, replication, these operators are also same. Okay, so let us try to clear this by using example. Okay, so already we have seen about indexing. Let us check the len function. Okay, let us have a tuple having elements this much, and let us try to print that what is the length of this tuple. So the function name will be len, and since we are having 5 elements, the result must be 5. So here we are getting the result 5. Okay, now let us check for the slicing. Suppose we want to get a range of elements. Okay, we don't want individual element, we want from first 3 elements we want. So for that we need slicing. तो हमें स्लाइसिंग हमें कहाँ से कहाँ तक के एलिमेंट्स चाहिए, हमें चाहिए 0 से लेके 0 1 2, मतलब हमें एक ज़्यादा लिखना पड़ेगा क्योंकि लास्ट वन रिमेन्स एक्सक्लूडेड। ठीक है, तो इसे अगर एग्जीक्यूट करके हम देखेंगे तो देखते हैं कि हमें हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो हमें हमारे पहले 3 एलिमेंट्स मिल गए। तो स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट भी सेम है जैसा हमारा स्ट्रिंग और लिस्ट में था। अब हम बात करते हैं कॉन्कैटिनेशन और रेप्लिकेशन ऑपरेटर की। कॉन्कैटिनेशन और रेप्लिकेशन ऑपरेटर के लिए और एक टपल हम ले लेते हैं। सपोज हमने वहाँ पे डाल दिया 10 and 20। नाउ रिमेंबर, जस्ट लाइक लिस्ट एंड स्ट्रिंग, प्लस ऑपरेटर कैन बी यूज्ड विथ ओनली 2 टपल्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक टपल होगा और एक इंटीजर होगा, या एक टपल होगा एक स्ट्रिंग होगा, एक टपल होगा एक लिस्ट होगा। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। In case of tuple, both the operands should be of tuple data type. ठीक है, तो here we can combine this with another tuple. ठीक है, if you can't take another one as integer, string or any other type, both should be of tuple type.
So what will happen? Both tuples will be concatenated together. So here we can see all the elements will be combined in single tuple. Similarly, when we will use replication operator, that means multiplication operator, in that case, one of the operand must be integer. With this replication, both operands should not be tuple. One of the operand must be integer. Now what it will do? It will replicate the element that many times. यहाँ पे हमने t के साथ 3 को रेप्लिकेट किया है, मतलब ये जो टपल टी के जो एलिमेंट्स होंगे वो 3 बार रिपीट होंगे, जैसा कि लिस्ट और स्ट्रिंग में होता आ रहा था। तो चलिए इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हमारे जो लिस्ट के एलिमेंट्स होंगे वो 3 बार आप देख सकते हो यहाँ पे रिपीट हो चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का रिवीजन ही है, क्योंकि ये सारे ऑपरेटर्स जैसे स्ट्रिंग पे काम कर रहे थे वैसे ही लिस्ट पे काम कर रहे थे और वैसे ही टपल्स पे भी काम कर रहे थे। Here you can see that how we can access individual elements of tuple. जैसा कि already मैं आपको दिखा चुकी हूँ, तो the individual elements of a list are accessed through their indexes. List elements are indexed. फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कैसे होती है? 0 से स्टार्ट होती है और बैकवर्ड इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है -1 से। तो अगर यहाँ पे वॉवेल्स ऑफ 0 लिखा है मतलब फर्स्ट एलिमेंट विल बी एक्सेस, तो आंसर हमारा क्या होगा? ए। अगर यहाँ पे वॉवेल्स ऑफ 4 लिखा है मतलब इंडेक्स वैल्यू हमारी क्या लिख रखी है? 4 लिख रखी है। तो 0 1 2 3 एंड 4, सो हमारा रिजल्ट आएगा U। यहाँ पे हमने लिख रखा है -5, मतलब अभी हमें बैकवर्ड इंडेक्सिंग पे जाना है। बैकवर्ड इंडेक्सिंग विल स्टार्ट फ्रॉम -1, तो -1 -2 -3 -4 एंड -5, तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा A। ओके। अब यहाँ पे हमने अभी अभी देखा जॉइनिंग, रेप्लिकेटिंग एंड स्लाइसिंग। ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, इसको हम एक बार फिर से डिस्कस कर सकते हैं। सो द कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर व्हेन यूज्ड विद टपल्स जॉइन टू टपल्स, ओनली टू टपल्स कैन बी जॉइंड। हियर वी आर हैविंग टू टपल्स, TPL1 विल हैव दिस एलिमेंट्स एंड TPL2 विल हैव दिस एलिमेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल असाइनमेंट हो रही है, तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये TPL1 में असाइन हो जाएंगे और ये 63 67 TPL2 में असाइन हो जाएंगे। तो जब हम दोनों टपल्स के साथ ये प्लस ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो दोनों ही टपल्स के एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे। अब टपल के साथ हम इंटीजर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी हमें एरर दिखाएगा। तो ये सिर्फ एक टपल के साथ हम दूसरे टपल को ही कंबाइन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम रेप्लिकेशन ऑपरेटर की बात करते हैं, जैसा कि अभी हमने एग्जांपल में दिखाया, तो वो टपल के एलिमेंट्स को उतनी बार रेप्लिकेट कर देगा। ओके, एंड दिस इज द स्लाइसिंग। अगर हम किसी पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए स्लाइसिंग यूज करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है स्टार्ट विथ 3 एंड स्टॉप विल बी 7, तो 7 हमारे एक्सक्लूड रहेगा। हम कहाँ तक स्लाइसिंग कर सकते हैं? 3 से लेके 6 तक। तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा? 0 1 2 3 यहाँ से शुरू होगा और हम 6 तक जाएंगे। 4 5 6, मतलब आउटपुट हमारा आ जाएगा 20 25 29 एंड 20 अगेन। ओके, कंपेयरिंग टपल्स बिल्कुल सेम, जैसे कि रिलेशनल ऑपरेटर हमारे एक स्ट्रिंग में यूज़ हो रहे थे, लिस्ट में यूज़ हो रहे थे, वैसे ही हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स टपल्स में भी यूज़ हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे रिलेशनल ऑपरेटर हम टपल पे यूज़ कर सकते हैं। ये यूज़ करने का तरीका क्या है? जैसे हमने लिस्ट में लेक्सिकोग्राफिकल मेथड यूज़ किया था वैसे ही हम टपल्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। मतलब Python gives the result of non-equality comparisons as soon as it gets a result in terms of true or false from corresponding elements comparison. It jumps to next element when the first element of both tuple is same and so on. तो एलिमेंट वाइज कंपैरिजन होती है। अगर पहले दो एलिमेंट्स सेम रहेंगे तो नेक्स्ट एलिमेंट का कंपैरिजन शुरू होता है, बट दोनों टपल्स कंपैरेटिबल टाइप के होने चाहिए। कंपैरेटिबल टाइप के होने चाहिए मतलब अगर एक टपल में इंटीजर वैल्यूज़ है तो दूसरे टपल में भी इंटीजर होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि एक टपल में इंटीजर होगा और दूसरे में स्ट्रिंग होगा तो हम दोनों को कंपैरिजन करेंगे, तो उस सिचुएशन में हमें एरर मिलेगा। तो दोनों ही टपल्स के, जैसे यहाँ पे हमारे पास दो टपल है और दोनों ही के एलिमेंट्स इंटीजर हैं, तो यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा T1 से बड़ा है या नहीं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, यहाँ पे कंपैरिजन जो होती है एलिमेंट वाइज होती है। तो
टी का फर्स्ट एलिमेंट और टी1 का फर्स्ट एलिमेंट आपस में कंपेयर होंगे और उस कंपैरिजन के बेसिस पे हमें हमारा रिजल्ट मिलेगा। तो 2 विल बी compared by 10 that whether it is greater than this one or not. So this is not greater, 2 is not greater than 10, so result will be false. अगर यहाँ पे भी 2 होता, दोनों सेम हो जाते, तब दूसरे एलिमेंट्स की कंपैरिजन स्टार्ट होती। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें हमारा रिजल्ट फॉल्स मिलना चाहिए क्योंकि यस वी आर गेटिंग फॉल्स। तो कंडीशन हमेशा ये रहना चाहिए कि दोनों टपल्स के टाइप सेम रहे, मतलब दोनों के एलिमेंट्स के टाइप सेम हो। अगर एक टपल इंटीजर है तो दूसरा टपल भी इंटीजर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपैरिजन कुछ इस तरह से है। यहाँ पे ए और बी के पास ये एलिमेंट्स हैं, सी और डी के पास ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ए और बी के एलिमेंट्स सेम हैं तो यहाँ पे ट्रू आएगा, बट ए और सी अलग अलग हैं क्योंकि ये हमारा इंटीजर एलिमेंट्स है और यहाँ पे हमारे स्ट्रिंग एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा फॉल्स। अब वैसे ही अगर हम कंपेयर करें वेदर ए इज ग्रेटर देन बी और नॉट, तो फॉल्स आएगा क्योंकि ए और बी तो इक्वल है, ग्रेटर इसमें कोई नहीं है, लेस इसमें कोई नहीं है। अब हम कंपेयर करेंगे क्या ए और डी बराबर हैं, तो हाँ ए और डी बराबर हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2.0 है, तो बोथ विल बी कंसिडर्ड सेम, दोनों ही इक्वल वैल्यूज है। अब हम देखते हैं पैकिंग एंड अनपैकिंग क्या होता है। जब हम बात करते हैं पैकिंग ऑफ टपल्स एंड अनपैकिंग ऑफ टपल्स, तो इसका मतलब क्या होता है, लेट अस डिस्कस। तो क्रिएटिंग अ टपल फ्रॉम अ सेट ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड पैकिंग। नॉर्मली जैसे हम यहाँ पे एक टपल को क्रिएट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सारे एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके एक राउंड ब्रैकेट में हम इनक्लोज कर दे रहे हैं, पैक कर दे रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं पैकिंग ऑफ टपल्स। टपल को क्रिएट करना इस तरीके से ही कहलाता है पैकिंग। और अगर सारे एलिमेंट्स को हम अलग अलग कर देंगे तो इसको हम कहते हैं अनपैकिंग। So creating a tuple from a set of values is called packing, and its reverse, that is creating individual values from tuples element, is called unpacking. ठीक है, तो इसको हम चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे जैसे हमने एक टपल क्रिएट किया which is having 5 elements. Okay, and suppose I am writing like this: a comma b comma c comma d comma e. Since we are having 5 elements, I have taken here 5 variables, and if I am writing t, then what will happen, all these 5 elements will be assigned to these 5 variables. Okay, now suppose if we will try to print a, then what we will get, we will get the very first element. ठीक है, let us try to execute this one. So we are having 2. So in the first statement we have packed the elements. This is known as packing and this is known as unpacking. तो यहाँ पे हमने सारे एलिमेंट्स को पैक करके एक टपल बनाया और यहाँ पे हमने फिर से सारे एलिमेंट्स को अलग अलग कर दिया। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे C तो हमारे पास आएगा आंसर 4। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल एलिमेंट्स यहाँ पे सारे के सारे अलग हो गए, तो ये हमारा कहलाता है अनपैकिंग। यहाँ पे आप देखो हमारे पास आउटपुट आ गया 4। ओके, सो दिस वाज अगेन एन इम्पॉर्टेंट topic of tuple, that what is packing and what is unpacking, so that we have already discussed. Now we are having some of the functions or you can call methods. तो जब भी हम functions और methods use करते हैं बेटे, we have to be careful that the function name are always written in lower case letters. हमेशा small letters में functions लिखे हुए होते हैं। और functions की पहचान कैसे होती है, ये राउंड ब्रैकेट अगर आप देख रहे हो इसका मतलब हम यहाँ पे फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो लेन फंक्शन ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं। अब हम देखते हैं मैक्स फंक्शन, मीन फंक्शन, इंडेक्स फंक्शन और काउंट फंक्शन का क्या काम है। ठीक है, तो हम एक एक करके ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। लेन फंक्शन ऑलरेडी हमने आपको दिखा रखा है। चलिए यहाँ पे हम पता करते हैं मैक्स फंक्शन। ठीक है, तो मैक्स फंक्शन जैसे कि लिस्ट में हमने देखा था, इट विल गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टपल।
वैसे अगर हम मीन फंक्शन देखना चाहेंगे तो वो हमें मिनिमम वैल्यू जो हमारे टपल के एलिमेंट्स में होगी वो हमें रिटर्न करेगा। अगर किसी पर्टिकुलर आप यहाँ पे आप देखिए मीन फंक्शन भी हमें क्या करता है, द मेथड रिटर्न्स द एलिमेंट फ्रॉम द टपल हैविंग मिनिमम वैल्यू। तो अगर इंटीजर है तो वो मिनिमम वैल्यू आपको पता है कैसे देगा, अगर स्ट्रिंग है तो वो ऑर्डिनल वैल्यू के अकॉर्डिंगली मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, अब किसी एलिमेंट का आपको इंडेक्स पोजीशन जानना है तो हम इंडेक्स मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने कोई ऐसा एलिमेंट लिख दिया है जो टपल में प्रेजेंट ही नहीं है तो फिर हमें उसके लिए एरर मिलेगा। काउंट फंक्शन ये बताता है कि कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट हमारे टपल में कितनी बार आया है। ठीक है, तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। सपोज हमें इंडेक्स फंक्शन जानना है कि हमारे टपल में जो एक मिनट मैं यहाँ पे एलिमेंट्स चेंज कर देती हूँ, 12 13 कुछ भी डाल देते हैं और इसको हम और एक बार रिपीट कर देते हैं। ठीक है, अब सपोज हमें चाहिए कि हम 15 का इंडेक्स पोजीशन फाइंड आउट करें। ठीक है, और हम देखते हैं कि हमारे टपल में 33 जो एलिमेंट है वो कितनी बार आया है। ये बताता है नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ एनी एलिमेंट। ये 33 हमारे टपल में कितनी बार आया है, दैट इट विल रिटर्न। तो हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं व्हाट वी आर गेटिंग। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा मैक्सिमम एलिमेंट जो है वो 33 है, जो मिनिमम वैल्यू है वो 12 है, और हमने इंडेक्स पोजीशन किसका जानना चाहा था, हमने जानना चाहा था इंडेक्स पोजीशन 15 का। तो 15 का इंडेक्स पोजीशन क्या है, 0 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 3, और हमने जानना चाहा था कि 33 कितनी बार हमारे टपल में आया है। तो 33 हमारे टपल में कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो काउंट फंक्शन हमें नंबर ऑफ occurrences ऑफ एनी एलिमेंट रिटर्न करके देता है। So this was all about tuples manipulation in Python. So they are very easy concepts, and almost most of things are same for string, list and tuples. So I hope this topic will be clear to you. If you find this video useful, then don't forget to like it, share it and subscribe it. Thank you for watching.